Bismillahirrahmanirrahim. Peshawar Public School and College. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about our new chapter, unit number 11, Organic Chemistry, lecture number 1. The topic of our discussion from unit number 11 are number 1, vital force theory, number 2, types of formula used for the representation of organic compounds, number 3, organic compounds and its classification on different bases. Now the learning objectives of these topics are number 1, history of organic compounds, in which we discuss about vital force theory. Number 2, what are organic compounds? Number 3, what is organic chemistry? Number 4, representation of organic compounds by different type of formula. Number 5, classification of organic compounds on different bases. Now first we discuss about the history of organic compounds, for which we discuss about the vital force theory. So the historical background of this theory is, in early time the scientists, they believed that the organic compounds, they were obtained only from the living organisms like plants and animals. वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आती है. इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका ये ओपिनियन था या बिलीव था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन होते हैं. जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो बात थी आगे जाके जब एक और साइंटिस्ट आया जिसने एक नॉन लिविंग सोर्स से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, तो ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई और फिर रिजेक्ट हो गई. So, a Swedish chemist Berzelius in 1815 he put forward this theory, the name of which is vital force theory. Actually, what is meant by the vital? So, the vital means it's the force of life which exists only in the plants and animals. ये एक ऐसी कुव्वत होती है जो कि plants और animals की body में मौजूद होती हैं. Now, how we can define this theory, or what is the statement of this vital force theory? This theory states that the organic compounds, they can only be prepared by the living organisms like plants and animals, and the organic compounds, they cannot be prepared in the laboratories, like they can only be obtained from the living source and they cannot be obtained from the non-living source. Now when this theory was rejected and how this theory was failed, so there, when there was a scientist like Frederick Wöhler in 1828, he prepared urea. The formula of the urea is NH2C++ONH2. When he heat an inorganic compound like ammonium cyanate, the formula of which is NH4CnO in the laboratory. And when this ammonium cyanate, which is an inorganic compound, when it is heated, it results in the formation of organic compound, the name of which is urea. And the urea which he obtained in the laboratory from the inorganic compound, it was similar to the urea of animals, which is present in the urine of animals. So इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये कब रिजेक्ट हुई? ये तब रिजेक्ट हुई जब एक और साइंटिस्ट ने, जिसका नाम फ्रेडरिक वूलर था, उसने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबॉर्ट्री में तैयार किया. यानी पहले तो साइंटिस्ट का ओपिनियन ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लेबॉर्ट्री जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक फोर्स के अंदर जिसका नाम है वाइटल फोर्स, उसके अंदर के थ्रू अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है. लेकिन जब लेबॉर्ट्री में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया आर्टिफिशियल सोर्स से, तो ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई. अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं. It means that the organic substances, they can be prepared from the inorganic substances. You already know about the meaning of organic and inorganic. Organic means the source of which is living, and the inorganic means the source of which is non-living. But here the organic are prepared from the inorganic source. Now the urea which is present in the laboratory, it was similar to the urea of animals. So the vital force theory, this was discarded or rejected.
Now we will define about the organic compounds. What are organic compounds? So the organic compounds are the compounds which contain carbon and hydrogen. They are called, first of all, we define the hydrocarbons. Because the compounds which contain carbon and hydrogen, they are called hydrocarbons, and the hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. Like, we can define the organic compound in such a way that the hydrocarbons and their derivatives, they are called organic compounds. Now, what are the hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds which contain carbon and hydrogen only, like methane, CH4. In the same way, number of compounds here are given. So the organic compounds, they may also contain other elements like ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन. ये ज़रूरी नहीं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस हो गया है कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें चूँकि डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं तो उसमें अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन. The organic compounds, they are obtained from the living organisms as well as prepared synthetically. अब जब यूरिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्कवर हो गया लेबॉर्ट्री में, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं होते, बल्कि हम उसको लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. Now the examples of the organic compounds are given: methane, CH4, methyl chloride, CH3Cl, ethyl alcohol, C2H5OH. अगर आप देख लें सेकेंड नंबर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन भी मौजूद है, जबकि थर्ड नंबर एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मौजूद है. इस तरह कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, आगे अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे पैराडीन वगैरह में नाइट्रोजन मौजूद है, कुछ में सल्फ़र मौजूद है, थायोफीन वगैरह में हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में. नाउ व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? So organic chemistry, there are two definitions given of the organic chemistry. Like, the study of hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry. As I have defined that the hydrocarbons and their derivatives are called organic compound. So the study of hydrocarbons and their derivative is called organic chemistry. यानी organic compounds की जो study है हमारे पास, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं. यहाँ पर डेरिवेटिव का लव यूज़ हुआ है. डेरिवेटिव मीन कि जैसे ऊपर अगर आप देख लें मीथेन है, आगे आपको एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे गिवन है, जैसे मीथेन है और मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन लग गया तो मिथाइल क्लोराइड फॉर एग्जांपल बन जाता है. तो ये इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं, यानी उन्हीं से डिराइव जो हो. Now, second definition of the organic chemistry is given, that is the branch of chemistry which deals with the study of carbon containing compounds. The branch of chemistry which deals with the study of carbon containing compound except oxides of carbon. अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच के जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस गिवन है, और वो एक्सेप्शनल केसेस क्यों गिवन है वो यहाँ पे आगे मैं बताती हूँ आपको. नाउ एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एंड मेटल कार्बाइड्स, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कैल्शियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम कार्बाइड. और जो कार्बाइड वो होते हैं कि जिसमें कार्बन के ऊपर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो आपके पास. और मेटल कार्बाइड मीन द कार्बन के साथ मेटल की जो कम्बिनेशन के जिसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 हो. इस तरह साइनाइड्स जो है, सोडियम साइनाइड, साइनाइड को हम CN से प्रेजेंट करते हैं, -1 उसका चार्ज है. हम सोडियम साइनाइड के पोटेशियम साइनाइड कोई भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट एक्सेप्ट दिस कंपाउंड. सो व्हाई दिस एक्सेप्शनल केस इज टेकन? एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती है. इसी तरह जैसे बाज़ और कंपाउंड से डिफरेंट होती है. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि वो जब बर्न होते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह हम कह दें कि वो जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स जो है, बड़े बड़े कंपाउंड्स उससे बनते हैं. लेकिन यहाँ पे जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बाइड या साइनाइड जो है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐड नहीं कर रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन.
द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड नाउ इंटू टू टाइप्स। हम पहले कह रहे थे कि वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते, फिर हम लेबॉर्ट्री में हमारे पास एक और यूरिया प्रिपेयर हो गया, लेकिन अब हम उसको इस वजह से कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे में बी नेचुरली अकरिंग और दे में बी सिंथेटिक मीन दे में बी मैन मेड। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरली अकरिंग, लाइक ह्यूमन हेयर्स, फैट्स, फूड मटेरियल्स, natural gas, petroleum products, these all are organic compounds which are naturally prepared, or which are the source of which is natural. While in synthetic, the plastics, medicines, detergents, paints, dyes, they all are prepared synthetically, and they are organic compounds because they contain carbon. Now here the definition of the derivative of hydrocarbon is given. So what are the derivatives of hydrocarbons, if anyone asks from you? So the derivatives of the hydrocarbons are the organic compounds which are derived from the hydrocarbons. But what are hydrocarbon? The compound of containing carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Like here is the example given which I have discussed earlier. When methane is treated with chlorine, it results in the formation of methyl chloride. One of the hydrogen of methane is replaced by one of the Cl of Cl2 molecule. यानी एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल के Cl2 के एक Cl के साथ मिलके HCl बना देगा, जबकि जो मीथेन का मिथाइल ग्रुप, आगे आप अल्काइल रेडिकल डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर में। तो CH3 जो बन गया है ये मिथाइल रेडिकल है, जिसको हम जनरली अल्काइल कहते हैं। इसके साथ क्लोरीन मिलके मिथाइल क्लोराइड बना देगा, इसको हम क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जबकि मीथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोकार्बन से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बन गया, जस्ट एटम के रिप्लेसमेंट की वजह से। नाउ हाउ कार्बन कैन शो टेट्रावेलेंसी एंड फॉर्म टेट्राहेड्रॉन। इसके लिए आपके साथ मैंने कुछ वीडियो लिंक्स शेयर की थी मुहर्रम की छुट्टियों से पहले, दोबारा भी मैं मैं सेंड कर दूं इसको। सो हेयर नाउ वी विल डिस्कस कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों बनाता है और वो टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है। So as you know, dear students, that the atomic number of the carbon is 6. So it has 2 electron in the K shell and 4 electron in the L shell. L shell has 4 electrons. So carbon, as L shell is the valence shell and it is the last shell of the carbon, so carbon uses its 4 valence electrons. Now by the sharing of these 4 valence electrons, carbon form 4 covalent bond, and it form a tetrahedral structure which is also called a tetrahedron, and that tetrahedral structure is 3-dimensional or 3D solid figure. 3-dimensional mean like you can draw it on either 3 axes, x-axis, y-axis and z-axis. And here if you look at the structure which is given on the right side, it is a tetrahedral structure because 4 sides are present, one above, 2 on the sides, right and left, and 1 below. And the bond angle between any carbon hydrogen is 109.5, चाहे आप वो कोई भी साइड से ले लें, जो बॉन्ड एंगल होगा टेट्राहेड्रल शेप का वो 109.5 है। ये थोड़ा सा आप लोग 9 क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। So methane has a tetrahedral shape. Now types of formula by which the organic compounds can be represented. There are 4 types, like number 1 is molecular formula, second is structural formula, third is condensed formula, and the fourth one is electron dot and cross formula, which is also called electronic formula. So now the first one we will discuss, that is the molecular formula. So the formula which represent the actual number of atoms in a molecule of compound is called molecular formula. जैसे कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि molecular formula, empirical formula वगैरह की definitions के बारे में। सो नाउ इसका मतलब है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स जो मालिक्यूल में मौजूद होते हैं वो आपको शो करता है। जैसे मीथेन में CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, ईथेन में C2H6 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, प्रोपेन में C3H8 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, ब्यूटेन में C4H10 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैं एक जनरल फार्मूला आगे बता रही हूँ जिसमें आप नंबर ऑफ़ कार्बन पुट करके ये फार्मूला अपने लिए जो है बना सकते हो खुद से भी mathematical work के through. Now what is the structural formula? The structural formula, it can be defined as a formula which describe the arrangement of different atoms of various elements around the carbon atom present in the molecule of compound, or it can be defined as the formula which represent the bonding arrangement between the atoms in a molecule of compound is called structural formula. ओके इन दोनों डेफिनेशंस का मतलब यही है कि ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसको आप इस तरह से, इसमें जो एटम्स हैं सेंट्रल और जो साइड पे जो एटम्स इसको इस तरह से बनाते हो कि उसमें बॉन्डिंग शो होती है आपके पास, यानी कौन से एटम ने कौन से एटम के साथ किस किस्म का बॉन्ड बनाया है। जैसे कार्बन मोस्टली आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
कार्बन चूँकि उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ना तो लूज़ हो सकते हैं ना गेन होते हैं, बल्कि उसको मोस्टली जो है वो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में भी इन्वॉल्व, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे इथेन C2H6। अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे 2 कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो उसने एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और एक उसने दूसरे कार्बन के साथ शेयर किए, तो 4 के 4 जो है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक जो है वो दूसरे कार्बन के साथ, चाहे हम राइट कार्बन को लें या लेफ्ट वाले कार्बन को लें। नाउ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल शॉर्ट लाइन और 2 शॉर्ट लाइन। अब हमने प्रोपीन यहाँ पे लिया है C3H6। जैसे प्रोपेन पीछे उसमें आप एग्जांपल हमें पढ़ चुके हो कि C3H8 था, तो ये प्रोपीन है। प्रोपीन्स जो होते हैं वो अल्कीन्स होते हैं, और उसका जनरल फार्मूला भी जो है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स से डिफरेंट होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ पे जो प्रोपीन है वो एक अल्कीन है जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर आप देख ले स्ट्रक्चर को तो C3H8 H6 इस तरह से अरेंज है कि 3 कार्बन एटम्स हैं, और किसी भी एक 2 कार्बन के दरमियान में आपने डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये प्रोपीन है, ENE लिखा हुआ है एंड में, इट मीन्स कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। और अगर आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करें तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख लें तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के साथ शेयर हो गए, अब 2 रह गए, 2 जो है उसके साथ 2 कार्बन हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसी तरह सेकेंड नंबर पे लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि वो 2 तो एक कार्बन के साथ लेफ़्ट साइड पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे एक कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा। अब अगर आप इस कार्बन को देख ले जो कि लास्ट राइट साइड पे लास्ट नंबर पे हैं, राइट साइड से फर्स्ट नंबर पे, जबकि लेफ़्ट साइड से हम काउंटिंग करें तो लास्ट नंबर पे हैं, तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि उसका सिर्फ एक शेयर है लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ। तो हर कार्बन की तकरीबन 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, चाहे वो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, और चाहे वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। नाउ द ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रिपल और 3 शॉर्ट लाइन्स। अब देखिए इथाइन, ये आप लोग मोस्टली पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, इसको C2H2 कर ले। C2H6 ऊपर से शायद 6 गलती से लिखा गया है, लेकिन C2H2 कर ले इसको। तो फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक लिखा हुआ है, जैसे एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे शेयर हो गए, अब एक रह गया हर कार्बन के साथ, तो हर एक कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के साथ जो है दोनों साइड से शेयर कर लेगा, तो अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गई। तो ये जो है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो अगर आप ऊपर देखें ईथेन में तमाम के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है आपको शो हो रहे हैं। प्रोपीन में देख लें तो एक डबल और बाकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह जो इथाइन है उसमें देख लें एक ट्रिपल है और बाकी 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। अब यहाँ पर एक बात है, जैसे ईथेन या इथाइन जो है, ईथेन ईथ का लफ्ज़ जो है उन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, आगे आपको नोमेनक्लेचर में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगी, कि जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हो, जबकि प्रॉप का लफ्ज़ उनके लिए यूज़ होता है जिसमें 3 कार्बन मौजूद हो। इसी तरह ANE ईथेन के साथ ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, तो ANE जिसके साथ लिखा होगा उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तमाम, जबकि ENE जिसके साथ लिखा होगा तो उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। जिसके साथ YNE हो, जैसे इथाइन में है तो उसके साथ ई तो 2 कार्बन के लिए है, जबकि YNE जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। अब फार्मूला टाइप ऑफ फार्मूला नंबर third type that is condensed formula. So it can be defined as the formula where the group of atoms are shown in order as they appear in the structural formula without bond is called condensed formula. अब जैसे पिछले स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने बॉन्डिंग शो की है, लेकिन यहाँ पे हम बॉन्डिंग नहीं शो कर रहे और ग्रुप के फॉर्म में हम जो एटम्स है उसको शो कर, जैसे CH3 भी पीछे आपने इथेन में पढ़ा तो उसमें ओपन फॉर्म में लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे आप दोबारा ऑब्जर्व कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप इथेन को देख ले इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में, तो तमाम कोवेलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसका ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला है। लेकिन हम इसको अगर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख लें कंडेंस्ड मीन वो चीज़ आप इसमें जुड़ी हुई हो, करीब करीब हो,
तो इसको हम CH3 करके, कोई बॉन्ड नहीं शो हो रहा, तो कंडेंस्ड फार्मूला ऐसे कहते हैं, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स करीब करीब शो हो रहे हो लेकिन कोई बॉन्डिंग शो नहीं होती। अब प्रोपेन में चूंकि 3 कार्बन और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो CH3 CH2 CH3। बेशक अगर आपको इस तरह से याद ना हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लें, फिर उसमें से बॉन्डिंग हटा के इस तरह कंडेंस्ड फॉर्म में उसको आप लिख सकती हैं। नाउ नंबर 3 इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो है 4 कार्बन होते हैं। BUT का लफ्ज़ जो है ब्यूटो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हैग्स का जो लफ्ज़ है वो 6 के लिए, और हेप्ट का जो लफ्ज़ है वो 7 कार्बन के लिए यूज़ होता है। अब अगर आप ब्यूटेन को देख लें, इसमें 4 कार्बन यूज़ हुए हैं। अब अगर आप हेक्सेन को देख लें, तो इसमें CH3 CH2 होल 4 और CH3, यानी वो पूरा हमने नहीं लिखा, इस तरह से ग्रुप के फॉर्म में इस तरह से लिख लिया कि 4 कार्बन तो ये ब्रैकेट के अंदर हो गए, और बाकी 2 आउटसाइड पे, राइट और लेफ़्ट पे, तो 4 5 6 कार्बन है टोटल यहाँ पे। जबकि हेप्टेन में अगर आप देख लें तो 5 ब्रैकेट के अंदर है, 5 CH2 होल 5 लिखा हुआ है, और राइट और लेफ़्ट पे एक एक है, तो 5 6 7 कार्बन से। So a true condensed formula can be written on a single line without any branching below and above it. अब हमने इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं शो की, टॉप पे भी और बॉटम पे भी आप आगे ब्रांच स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्रांचिंग कैसे होती है। Now type number 4 is dot and cross formula. So it can be defined as the structure formula. ये भी स्ट्रक्चर को ही शो करें, इसलिए हम बार बार इसमें स्ट्रक्चर कह रहे हैं. So the structural formula in which the electrons are shown as dot and cross between the various atoms in a molecule of compound is called dot and cross formula or electronic formula. इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इसलिए कह रहे हैं कि हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, एक एलिमेंट के या एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम डॉट से, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो करेंगे. So now the shared pair between the two atoms, it represent the covalent bond. जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड पेयर होगा, जैसे कि एक एटम उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है पेयर में और एक दूसरा, तो वो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेगा. यानी हम उसको बॉन्ड को डैश लाइन से नहीं शो करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर से दरमियान में उसी तरह मौजूद होंगे डॉट और क्रॉस फार्मूला में. आगे एग्जांपल से आप उसको समझ लेंगे इंशाल्लाह. Now the examples as methane. As I have written on the right side, CH4 is the molecular formula of methane. In the same way, C3H8 is the molecular formula of propane. But dot and cross formula, we can write it in such a way. C has 4 electrons. The black dots show the electrons of the carbon, and the blue cross show the electrons of the each hydrogen. So each hydrogen provide 1 electron to the sharing. So there are 4 hydrogen atoms. So 4 hydrogen atoms provide 4 electrons, and the 4 electrons are provided by the carbon. So the shared pair, there are 4 shared pair. One on the top, one on below, and one on the right or one on the left side. So it means 4 single covalent bond they are showing. Now the second example is dot and cross formula of the propane. As the prop word show that the 3 carbon atoms, so 3 carbon atoms each has 4 electrons, which are shown by the black dots, and with each carbon atom, the carbon atom can form a bond with each other as well as with the hydrogen atoms. सो अगर आप इस एग्जांपल को देख लें तो यहाँ पे जो राइट साइड से अगर कार्बन देखें तो 3 उसके साथ हाइड्रोजन है, तो जबकि एक उसका कार्बन के साथ शेयर हो रहा है. इसी तरह जो दरमियान वाली कार्बन का है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन वो दोनों साइड्स पे 2 कार्बन के साथ शेयर कर रहा है. और लेफ़्ट साइड वाला कार्बन का भी सेम सिचुएशन है जिस तरह राइट साइड वाली कार्बन का है. Now discuss the classification of organic compounds on different bases. So the first is the classification of organic compound on the basis of their skeleton. अब आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूँकि बहुत लार्ज नंबर में मिलियंस और जो है बनते हैं एक वक्त में, तो इस वजह से उनको क्लासिफाई किया गया है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है they are classified into 2 types on the basis of their skeleton or structure. So number 1 is the open chain or acyclic organic compound, and the second is closed chain or cyclic organic compound. Acyclic, A जिसके साथ लगा होगा, it means absence of cycle, यानी ओपन चेन में कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा. एसाइक्लिक मीन यानी विदाउट साइकिल ओपन फॉर्म में होगा, जबकि क्लोज चेन वो जो है वो साइक्लिक फॉर्म में होगा. आगे हम उसको एग्जांपल से समझ सकते हैं. बट फर्स्ट हम उसके अगर एग्जांपल डिस्कस करें उससे पहले ये वाला पेज ज़रा आप देख लें. यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया इसको. आप इसके लिए अगर बुक खोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेम्स ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स दिया हुआ है. मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन. फिर जनरल फार्मूला है अल्केन्स का CnH2n+2. आगे मैंने आपको लास्ट पेज पे इस लेक्चर के ये प्रोवाइड भी किया हुआ है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला. इसी तरह वीडियो में भी इंशाल्लाह डिस्कस होगा.
आफ्टर लेक्चर CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है। अब n जो है ना, C के नीचे जो n है ये नंबर ऑफ़ कार्बन को शो कर रहा है। तो अब आप जो n जो भी होगा उसमें आप नंबर ऑफ़ कार्बन पुट करोगे। फॉर एग्जांपल मीथेन में 1 कार्बन है तो आप लगा लोगे C1 और H के नीचे लिखा हुआ है 2n+2, सो 2 में आप लोग n में 1 लगा लोगे, सो 2 × 1+2 जो है 4 हो जाएगा। सो CH4 आपके पास बन जाएगा। तो CH4 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन कंडेंस्ड फार्मूला को इसी तरह आप लिखेंगे, बाकियों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये तो एक ही वो है, ग्रुप ऑफ एटम है तो एक ही सिंगल हम लिख लेंगे। फिर स्ट्रक्चर फार्मूला में आप इसको ओपन करके लिखेंगे। वैसे आप जब शुरू में स्टूडेंट्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला की समझ आती है। तो खैर इसको सीख लें, मोर प्रैक्टिस करें इसकी, फिर आप ये बाकी कंडेंस फार्मूला और उसमें से बना सकते हैं। मालिक्यूलर फार्मूला आपको थोड़े से याद रखने पड़ते हैं, नहीं याद होता तो ये जो जनरल फार्मूला है इसमें आप पुट करके उसमें से मालिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकती हैं। नाउ हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ, यानी ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। So these are defined as these are the organic compounds in which the carbon atoms they are in open chain skeleton. They may be straight chain or they may be branch chain. ये जो एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे इसमें कार्बन एटम्स इस तरह से हाइड्रोजन्स के साथ या और एलिमेंट्स के साथ इस तरह से अरेंज होंगे कि ओपन चेन बनाएंगे, या तो स्ट्रेट चेन फॉर्म में होंगे और या फिर ब्रांच होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्ट्रेट चेन किस तरह होंगे और ब्रांच चेन किस तरह से होंगे, तो आगे हम उसको एग्जांपल से समझते हैं। Now the number one is straight chain organic compounds. In these organic compounds, the carbon atoms they link with each other to form the straight chains. So there is no branch in these organic compound, and the carbon atom is not linked to more than 2 carbon atoms. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड होंगे कि वो एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे और यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होगा, उस ऊपर या नीचे कोई ग्रुप ऑफ एटम नहीं होगा। इसके अलावा जो एक कार्बन एटम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा, 2 से ज़्यादा कार्बन उसके साथ अटैच नहीं होंगे। जैसे अगर आप नंबर 1 एग्जांपल देखें प्रोपेन में, तो जो सेंट्रल कार्बन है CH2 वाला वो दो साइड पे 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, CH3 वाले कार्बन और CH3 वाले कार्बन के साथ राइट और लेफ़्ट साइड पे, जबकि और कोई कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है। इसी तरह अगर आप एन ब्यूटेन को देख ले तो इसमें भी कोई भी अगर आप सेंट्रल कार्बन ले लें, चाहे पहला CH2 लेती है, दूसरा CH2 दरमियान वाली लेती हैं, तो वो 2 कार्बन के साथ ही अटैच है, 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ वो अटैच नहीं है। आगे मैं आपको ओपन करके इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले से ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकती हूँ। एन पेंटेन में अगर आप देख लें, एन पेंटेन में तो ये लिखा हुआ है कि 5 पेंटेन का मतलब पेंट मीन 5, तो 5 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन कोई भी कार्बन अगर आप ले ले ऊपर दरमियान वाला तो वो राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एन लफ्ज़ लिखा हुआ है पेंटेन के साथ, तो इसका क्या मतलब है। सो द प्रीफिक्स एन स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल एंड इज़ यूज्ड फॉर द स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आपके पास जो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे भी मैंने डिस्कस किए प्रोपेन या एन ब्यूटेन या एन पेंटेन, तो इनको आप लोग क्या करेंगे, इनमें शुरू में एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है और ये किस लिए होता है, ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम शो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेरे जहन में आई है कि आप में भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि एन ब्यूटेन या एन पेंटेन के साथ तो एन लगा हुआ है लेकिन एन प्रोपेन के साथ नहीं लगा हुआ। असल में आगे आप लोग पढ़ेंगे आइसोमर्स, तो एन ब्यूटेन के या एन पेंटेन के और आइसोमर्स बन सकते हैं, जैसे आइसो या न्यू, अगले उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांच में। लेकिन प्रोपेन में इस तरह आप नहीं बना सकते आइसो या न्यू स्ट्रक्चर, तो इसीलिए हम इसको जस्ट प्रोपेन कहते हैं, एन नहीं कहते। नाउ लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले हमारे पास एग्जांपल्स में आए, हम जो है उसको भी ले सकते हैं, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स को ले सकते हैं हम। ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं गर्ल्स, इनकी जो वो होती हैं प्रॉपर्टीज़, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनमें होता ये है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का होना ज़रूरी नहीं बल्कि डबल और ट्रिपल भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए 1 ब्यूटीन, अब 1 ब्यूटीन में आप लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, बाकी तो उसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किसी भी 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दी तो फिर ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन जो है अगर आप राइट साइड से देखिए तो ये कार्बन 2 जो डबल बॉन्ड है, इसको नीचे करके मैंने ओपन करके और करके लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख लें, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ शेयर किए हैं। मैं फ़र्स्ट वाले राइट साइड से कार्बन की बात कर रही हूँ, और इस ज़ाहिर 2 रह गए तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ है,
अब अगर हम सेकेंड कार्बन को देख ले राइट साइड से, तो उसका 2 तो कार्बन के साथ शेयर है, राइट साइड वाले कार्बन के साथ, और एक जो है वो थर्ड कार्बन के साथ है। ज़ाहिर है एक रह गया, वो हाइड्रोजन, उसके साथ हम एक लगा देंगे। इसी तरह जो थर्ड नंबर पे कार्बन है उसका एक एक तो दोनों साइड्स पे कार्बन के साथ शेयर्ड है, लेकिन जो 2 रह गए तो वो ऊपर नीचे हाइड्रोजन के साथ है। लेकिन जो लास्ट वाला फोर्थ नंबर पे कार्बन है उसके साथ उसका सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर बाकी 3 उसकी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। यानी हम इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को इस तरह नहीं कहेंगे कि ज़रूरी है कि वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। 2 से कम हो सकते लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी एक कार्बन के साथ 2 या 2 से ज़्यादा एटम 2 अटैच हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं अटैच हो सकते। इसी तरह 2 ब्यूटीन में वही 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटीन जब हो गया तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। आगे नोमेनक्लेचर में इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाना है मैंने इसको। तो यहाँ आप देख ले, मैंने जो और करके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है इसको हम समझ लेते हैं। अगर राइट साइड से देखिए CH3 लिखा हुआ है कंडेंस फार्मूला में 2 ब्यूटीन में, ऊपर 5 नंबर एग्जाम्पल में। तो मैंने CH3 ओपन करके लिख दिया, C और 3 का हाइड्रोजन्स के साथ, फिर एक सिंगल बॉन्ड है सेकेंड नंबर पे कार्बन के साथ। अब सेकेंड नंबर वाला कार्बन थर्ड नंबर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो जाहिर है अब उस जो सेकेंड वाला कार्बन है 2 तो उसने लेफ्ट साइड पे कार्बन के साथ शेयर कर लिए, एक राइट साइड पे कार्बन के साथ, एक रह गया तो उसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। सेम कंडीशन जो है वो थर्ड कार्बन की है, लेकिन फोर्थ कार्बन की कंडीशन जो है वो फर्स्ट कार्बन की तरह है। क्योंकि उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक उसका जस्ट कार्बन के साथ है जो कि राइट साइड पे है, उसके साथ शेयर्ड है। अब अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो तमाम जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए उसमें कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है। नाउ नंबर सेकंड इज़ ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो जैसे हमने पहले क्लास बताई ओपन चेन कंपाउंड्स की, वो स्ट्रेट चेन थी, अब सेकंड जो है वो ब्रांच चेन है। सो इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द कार्बन एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लीनियर सीक्वेंस इन अ ब्रांच चेन अल्केन्स एंड द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 और 4 फर्दर कार्बन एटम्स। अब पिछले में हमने ये डिस्कस किया कि 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 कार्बन हो सकते हैं ब्रांच चेन में, क्योंकि ब्रांच का नाम आ गया है तो मे बी के ऊपर या नीचे उसके एक और कार्बन भी लगा हुआ हो। और यहाँ पे वहाँ पे हमने प्रीफिक्स एन यूज़ किया, यहाँ पर हम प्रीफिक्स आइसो लगाएंगे या फिर नियो हम लगा सकते हैं। लेकिन अब आइसो कब लगाएंगे और नियो कब लगाएंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो द प्रीफिक्स आइसो इज़ यूज्ड व्हेन द मिथाइल ग्रुप CH3 जो है ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और जो लेफ़्ट साइड पे इसके डैश लगा हुआ है ये बॉन्ड अटैचमेंट है थ्रू अ बॉन्ड, अटैचमेंट साइड को शो कर रहा है। So the prefix iso is used when the methyl is present at the second position. When the methyl group is present at the second position, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिए, आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन इसको इसलिए कह रहे हैं, ब्यूटेन तो इसलिए कह रहे हैं कि 4 कार्बन इसमें मौजूद है, लेकिन आइसो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो अगर आप देखें 1 2 राइट से काउंट करें या लेफ्ट से स्ट्रेट लाइन में, तो सेकेंड नंबर पे कार्बन के साथ ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। यानी तमाम कार्बन को ब्यूटेन में काउंट करेंगे, लेकिन आइसो जस्ट उस ब्रांच की जो कि टॉप पे कनेक्टेड है ग्रुप ऑफ एटम्स ब्रांच की शक्ल में, उसके लिए आइसो का लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे, आइसोब्यूटेन। अब आइसोपेंटेन देख लें, टोटल कार्बन ब्रांच समेत इसमें 5 है सेकेंड एग्जाम्पल में, लेकिन सेकेंड नंबर पे जो कार्बन उसके साथ मिथाइल अटैच है। यानी आइसो का लफ्ज़ हम कब यूज़ करेंगे, जब मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन के साथ अटैच्ड हो। अब नियो का लफ्ज़ हम कहाँ यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप देख लें, एंड द प्रीफिक्स नियो इज़ यूज्ड व्हेन द 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन एटम। अब अगर आप देख लें ये नियो पेंटेन जो फार्मूला है, C और उसके साथ 4 टाइम्स CH3 लगा हुआ है, तो उसमें नियो का हम क्यों सेकेंड स्ट्रेट, अगर आप पहले सीधी लाइन को देख ले दरमियान में जो है तो 3 कार्बन आइटम्स है और ऊपर और नीचे CH3 ग्रुप है। तो अगर नंबर वाइज काउंट करें लेफ़्ट से राइट से, तो सेकेंड नंबर पे जो कार्बन आ रहा है तो उसके साथ ऊपर भी और नीचे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। यानी नियो हम उनको कहेंगे कि जिसमें सेकेंड कार्बन के साथ ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, और आइसो हम उसे कहेंगे कि जिसमें सेकेंड कार्बन के साथ सिर्फ एक ही ऊपर या नीचे या ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट एग्जांपल आइसोब्यूटेन का ओपन फॉर्म यहाँ पे राइट साइड पे शो किया, उसको भी आप देख सकते हैं, देख लें आप लोग। हाइड्रोजन 3 CH3 है तो उसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, फिर दरमियान जो CH है उसका H नीचे और ऊपर ब्रांच वाला CH3 ऊपर है। इसी तरह नियोपेंटेन को भी मैंने ओपन करके लिख दिया। ये ओपन इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएंगे, फिर आप और जो है वो भी प्रैक्टिस से सीख लेंगे।
सेकेंड ईयर में भी आप के कोर्स में मोस्टली ये चीज़ें शामिल हैं, यानी आपका जो मैट्रिक का कोर्स है वो मोस्टली सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, सेकेंड ईयर में होता है ज़्यादातर, ये बेसिक्स है। और जो 9th का कोर्स है वो मोस्टली फिज़िकल केमिस्ट्री से जो रिलेटेड है वो फर्स्ट ईयर में आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Now the second type of the classification is closed chain or cyclic organic compound. So the organic compounds in which the carbon atoms are linked together to form a closed chain structure or rings are called closed chain or cyclic organic compound. जिसमें कार्बन एटम्स जो है वो एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड हो, आप इसमें एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन हो, ना ब्रांच चेन हो, बल्कि एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको कहते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। नंबर 1 है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। ये होमो थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको ठीक कर ले, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब होमो का लफ्ज़ जैसे कि आपको बता रहे हैं कि होमो मीन सेम, और कार्बो का लफ्ज़ कार्बन से निकला है, कार्बन। तो ये वो कंपाउंड होंगे कि जिसमें साइकिल के फॉर्म में होगा, क्लोज चेन के फॉर्म में होगा, लेकिन तमाम के तमाम एटम्स जो है वो कार्बन होंगे, कोई और एटम इसमें नहीं होगा। इस वजह से इसको होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दीज आर द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर और रिंग आर कार्बन एटम्स ओनली। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दे में बी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दे में बी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे हमने पहले ए साइक्लिक पढ़ा, ए साइक्लिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ साइकिल, लेकिन एली साइक्लिक का मतलब एब्सेंस ऑफ साइक्लिक नहीं है। एली का जो लफ्ज़ है ALI, ये एलिफेटिक से निकला है, एलिफेटिक, ALIPHATIC। एलिफेटिक का मतलब है लेस एफिनिटी, यानी ये जो कंपाउंड होते हैं ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते, इसलिए इस वजह से एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं। और सेकेंड टाइप एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दीज आर द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज टू द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये एलिफेटिक जो होते हैं, एलिफेटिक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, और जैसे अल्केन्स, और वो जो है सैचुरेटेड होते हैं। आगे आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम इसको, उसमें और एडिशन नहीं होती है एटम्स की, पहले से उसकी जो वैलेंसी होती है वहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, उसकी में फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। अगर ब्रेक डाउन होगी तो तब कोई एटम ऐड होगा, वरना एटम्स नहीं ऐड हो सकती। तो ये जो एलिसाइक्लिक है, ये कंपाउंड क्लोज चेन फॉर्म में होंगे, साइकिल के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में होंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन चेन कंपाउंड्स की तरह होंगी, जैसे अल्केन्स वगैरह की तरह होंगी, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है वो उनसे इसलिए डिफरेंट हो क्योंकि ये क्लोज चेन है और वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन है। सो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर फ्राम द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई H2। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी ज़रूरी है उसको समझना, ये अक्सर MCQs में, वाइवा में आ जाता है, ईटा टेस्ट वगैरह में भी, कि जो एलिसाइक्लिक चूँकि उन्होंने क्लोज चेन बना दिया, रिंग बना दिया, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेती हैं, तो 2 हाइड्रोजन इनमें कम होंगे ओपन चेन कंपाउंड्स के मुकाबले में, इनके 2 हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे आगे आपको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। नाउ एग्जांपल नंबर 1 इज़ साइक्लोप्रोपेन। तो अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो का लफ्ज़ इसके साथ ऐड किया गया है क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में, क्लोज्ड फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है। बाकी प्रोपेन जो है वही प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स होंगे। अब आप देखें गर्ल्स, अगर मैं देख लूँ तो इसमें CH2 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 लिखा हुआ है, यानी अगर मैं एक कार्बन ले लूँ, कोई एक राइट या लेफ़्ट या टॉप वाला, तो उसने 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन बाकी जो 2 रिमेनिंग है वो उसने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर। इसको मैंने ओपन फॉर्म में नहीं लिखा, इसको हम ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे C के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दे, फिर दूसरे C के साथ 2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ, और तीसरे C के साथ भी 2 हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है साइक्लिक फॉर्म में होता है, और इसमें चूँकि कार्बन ने एक कार्बन के साथ उसका लिंक नहीं है, बल्कि एक कार्बन का दोनों कार्बन के साथ लिंक है, तो आप इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इसमें कम होंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख दिया है। आप चूँकि प्रोपेन के बारे में पहले पढ़ चुके हो, ये देखिए प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, राइट साइड पे टॉप पे गिवन है, और उसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, CH3 कंडेंस फार्मूला है इसका, CH3 CH2 CH3। तो इसमें अगर आप काउंट कर ले तो 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में देख ले तो 3 कार्बन है लेकिन 6 हाइड्रोजन है, यानी ये एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है आपके पास, ये ओपन चेन की तरह है, यानी साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन की तरह है प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है
अब यहाँ पे C3H6 है साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला, मालिक्यूलर फार्मूला, जबकि प्रोपेन का C3H8 है। तो इसका मतलब है कि प्रोपेन में 2 ज़्यादा है जबकि साइक्लोप्रोपेन में 2 कम है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोब्यूटेन को अगर आप देख लें, 4 कार्बन एटम्स होंगे और साइकिल के फॉर्म में अरेंज होंगे, और हर कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी 4 वैलेंसी हर कार्बन ने सेटिस्फाइड की हुई है। फिर अगर हम एन ब्यूटेन के साथ इसको कंपेयर करें तो उसको हम इस तरह, उसका फार्मूला बनेगा C4H10 मालिक्यूलर फार्मूला। इस तरह कंडेंस्ड फार्मूला भी आपको गिवन है, जबकि साइक्लोब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला है C4H8। ये जो रिंग हमने बनाई है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा। तो C4H8 में 2 हाइड्रोजन कम है साइक्लोब्यूटेन में, नॉर्मल ब्यूटेन के मुकाबले में, जो मैंने राइट साइड पे ब्लॉक्स में बनाए हुए हैं आपको डिफरेंस बताने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नाउ साइक्लोहेक्सेन इज C6H12। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए साइक्लोहेक्सेन है जिसमें 6 कार्बन है, रिंग फॉर्म में है, और 12 हाइड्रोजन है। हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है क्योंकि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ भी अटैच्ड है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके कंज्यूम हो गए हैं बॉन्डिंग में। लेकिन इसमें भी 2 हाइड्रोजन कम होंगे एन हेक्सेन से। एन हेक्सेन क्या है? एन हेक्सेन का फार्मूला है C6H14, यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। अब ये जो CH3 राइट और लेफ़्ट साइड पे हैं, अगर आप इसमें से रिंग बनाना चाहो ना तो ज़ाहिर है वो, अगर आप इसमें शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक एक हाइड्रोजन कम होगा, तो तब वो हाइड्रोजन के साथ तो आप आगे शेयर नहीं कर रहे। तो इस वजह से साइक्लोहेक्सेन में आप लोगों को शो हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हैं नॉर्मल हेक्सेन के मुकाबले में। इसका मालिक्यूलर फार्मूला C6H12 है और नॉर्मल हेक्सेन का C6H14 है। नाउ व्हाट आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ द सेकंड टाइप? So it can be defined as these are the cyclic organic compounds having alternate single and double bond in its structure or carbon ring. They are called aromatic organic compounds. अच्छा, कहते हैं कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक का लफ्ज़ तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में देखा जाए तो ये उसके जो है फ्रेगरेंस की वजह से है, कि इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसकी वजह से इसको लफ्ज़ एरोमेटिक का नाम दिया गया है। इसके अलावा बेंजीन रिंग से, जहाँ पर बेंजीन रिंग होगा जिन कंपाउंड्स में, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगी। इसके अलावा अगर बेंजीन का आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर पहले ऑब्ज़र्व किया हो तो उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट का मतलब है एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन पे, जैसे अगर एक पोजीशन पे डबल है तो अगली पोजीशन पे सिंगल होगा, फिर अगले पे सिंगल, फिर डबल, इस तरह से। तो ये वो कंपाउंड्स है कि जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे। इसके अलावा सेकंड डेफिनेशन ये है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे उसके स्ट्रक्चर में, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसको अब हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक बेंजीन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसकी एग्जांपल में एक तो बेंजीन आएगा, इसके अलावा डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आएंगे। जिस तरह हमने डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन से जो डिराइव होते हैं उसका एटम रिप्लेस होकर कोई और एटम उसकी जगह ले लेता है तो उसके डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। यहाँ पर बेंजीन में भी अगर एक बेंजीन के साथ दूसरा बेंजीन रिंग अटैच हो जाए या फिर उसमें कोई और एटम जो है वो रिप्लेस हो जाए, जैसे तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, आगे सीनियर क्लासेस में आप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है जो कि बेंजीन से डिराइव्ड होते हैं वो कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल में एक बेंजीन लिया है C6H6। सो डियर स्टूडेंट्स, बुक में आई थिंक ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये रॉन्ग गिवन है। यहाँ पे CH2 लिखा है जबकि CH2 नहीं है, फिर तो 12 कार्बन हाइड्रोजन बन जाएंगे और वो जो है आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में ये डिफरेंस है कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन जबकि 12 हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तमाम, लेकिन बेंजीन में जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं, 3 सिंगल और 3 डबल। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, अगर आप इसकी वैलेंसी को समझना चाहें तो देखिए गर्ल्स कि एक कार्बन जो है वो 2 जो बॉन्ड है वो तो कार्बन के साथ, अगले कार्बन के साथ बना रहा है, लेकिन एक वो हाइड्रोजन के साथ और एक नीचे वाले कार्बन के साथ, यानी हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। इसको हम इस तरह से भी सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज भी हो सकती है, आगे डिटेल में इंशाल्लाह आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ नेफ्थलीन को देख ले, आप लोग पढ़ चुके हो। नेफ्थलीन आपके पास जो मोथ बॉल्स भी इसे कहते हैं, मैट्रिक में आप लोगों ने वाइवा में पढ़ा था, उसमें पढ़ोगे इंशाल्लाह, 9th में पढ़ा था मेरा जहाँ तक ख्याल है।
सो जो C10H8 जो है यहाँ पे इसका ये मालिक्यूलर फार्मूला है और इसमें 2 बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और काफूर भी इसे कहते हैं। एंथ्रासीन जो इसमें C14H10 इसका फार्मूला है और यहाँ पे 3 जो बेंजीन रिंग्स है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है और बेंजीन ऊपर आपको गिवन है फार्मूला भी। तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि आपको मैंने कह दिया डेफिनेशन में भी कि जिसमें बेंजीन रिंग होंगे, बेंजीन होगा ख़ुद या बेंजीन रिंग जो है एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, वो आपके पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास सेकेंड जो क्लास है इसमें द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन 1 or more atoms other than the carbon atom in the cycle or ring are called heterocycle. As the name indicate, hetero mean different, cyclic mean cycle. सो वो कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक फार्म में क्लोज चेन के फार्म में तो होंगे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारे कार्बन हो। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन हैं, मीन्स यानी रिंग के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कार्बन हैं। लेकिन अब अगर आप नीचे देख लें एग्जांपल्स में तो इसमें फ्यूरेन जो है जो 4 कॉर्नर्स आपको शो हो रहे हैं उस पर तो कार्बन मौजूद होगा। यहाँ पे शो तो नहीं किया हुआ है लेकिन ये स्ट्रक्चर हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है और ये 5 मेंबर रिंग है और 2 इसमें डबल बॉन्ड है। इसी तरह थायोफीन को अगर आप देख लें, एक उसमें कार्बन की जगह सल्फ़र मौजूद है, बाकी 4 कार्बन हैं। इसी तरह पायरिडीन में जो है एक नाइट्रोजन है तो बाकी 1 2 3 4 5 जो है आपके पास ये 6 मेंबर रिंग है। इस वजह से इसमें एक जो नाइट्रोजन है तो 5 जो है वो कार्बन होंगे। बाकी जो फ्यूरेन और थायोफीन है वो 5 मेंबर रिंग है, जबकि पायरिडीन जो है वो 6 मेंबर रिंग है। लेकिन फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, थायोफीन में सल्फ़र और पायरिडीन में नाइट्रोजन। ये चीज़ें अक्सर आपको MCQs में आ जाते हैं कि फ्यूरिन में कौन सा एलिमेंट है, या थायोफीन में या पायरिडीन में, या फिर फ्यूरेन जो है वो हाउ मच मेंबर एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ फ्यूरेन। इट्स 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग। सो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि फ्यूरेन जो इट्स 5 मेंबर रिंग एंड ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट अदर देन कार्बन। थायोफीन इज़ आल्सो 5 मेंबर रिंग बट it has sulfur atom other than carbon, and pyridine is a 6 member ring. It has nitrogen atom instead of carbon. Other 5 are carbon but 1 is nitrogen. Now the classification, this is the second classification which is the classification of organic compounds on the basis of types of covalent bond present. अब हम इसको जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होगा भी पिछली क्लासेस से। अच्छा, इस पे आपका जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स है, तो तकरीबन तीनों में इसी में से आपने आंसर बनाना है। पहला पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 4A, व्हाट डू द टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन when applied to hydrocarbons. So first of all we define the hydrocarbons, as you already know. The organic compounds which contain carbon and hydrogen only are known as hydrocarbons. Now how they are classified, they are divided into 2 types on the basis of type of covalent bond present, like it may contain single, double or triple covalent bond. So the first type is saturated hydrocarbons which are also called alkanes, and the second type are called unsaturated hydrocarbons which are also called alkenes and alkynes. So the number 1 saturated hydrocarbon, how we can define it? These are the hydrocarbons in which the carbon atoms they are bonded to each other through a single covalent bond are called saturated hydrocarbons. अच्छा, अब अगर वो हाइड्रोकार्बन्स के जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होंगे। अच्छा, अब अगर किसी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें आप कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते जब तक कि कोई बॉन्ड ब्रेक ना कर ले, जब तक कोई एटम रिप्लेस ना हो जाए। सैचुरेटेड का उर्दू में मतलब भी अब कहते हैं कि सैर शुदा, यानी और इसमें नहीं ऐड हो सकता, एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, सो द टर्म सैचुरेटेड इज़ यूज्ड फॉर दोज हाइड्रोकार्बन्स टू विच फर्दर हाइड्रोजन कैन नॉट बी एडेड। अच्छा, अब इसमें आप और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते सैचुरेटेड में। जैसे मीथेन है आपके पास CH4, पिछला आपने एग्जांपल पढ़ा कि मीथेन में जब आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो तब कहीं जाके क्लोरीन उसमें अटैच किया, वरना ये नहीं हो सकता था कि CH4Cl आप बनाते, आपने CH3Cl बना दिया। सो सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होंगे कि जिसमें आप फर्दर हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम भी हो सकते हैं, जैसे हम क्लोरीन भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट आर द अनसैचुरेटेड, इसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ये मोस्टली अल्केन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। अब एग्जांपल गिवन है जैसे मीथेन में, अगर हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रा कर लें मीथेन का तो 4 साइड पे कार्बन के हाइड्रोजन मौजूद होगा ईथेन का। इसी तरह से आप पहले देख चुके हो स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन का, ये मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए।
ब्यूटेन का भी इस तरह मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया है, 4 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है 3, 3, 6 और 7, 8, 9, 10 जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन हैं। नाउ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। नाउ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी अनसेचुरेटेड को आगे हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। अल्कीन्स में चूँकि डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द टर्म सेचुरेटेड, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको अनसेचुरेटेड कर लें क्योंकि हम अनसेचुरेटेड की बात कर रहे हैं। द टर्म अनसेचुरेटेड इज़ यूज्ड फॉर दोज हाइड्रोकार्बन्स टू विच फर्दर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड बाय हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब अगर इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करना चाहे या कोई और मालिक्यूल एटम तो वो ऐड हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप ऐड करोगे डबल बॉन्डेड में तो बेशक एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक उसमें रहेगा, तो उसमें डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे, तो उसको जो चीज़ ऐड हो रही है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम कर लेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंज्यूम होके वो जो एटम्स है जो ऐड हो रहे हैं उसका हिस्सा बन जाएंगे कंपाउंड का। इसी तरह ट्रिपल में भी 2 टाइम्स एडिशन हो सकती है, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा जबकि जो दूसरा और तीसरा जो जिसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं वो उसमें 2 टाइम्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। सो द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर आल्सो कॉल्ड एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अल्कीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। जैसे इथीन को आप देख लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन को देख लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको मैं दोबारा बार बार कह रही हूँ कि मुश्किल होगा ये कंडेंस फार्मूला लिखना, तो आप उसको ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा करें, जैसे मैंने नीचे दोबारा लिख दिया है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन में राइट साइड से डबल बॉन्ड मौजूद है, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के लिए आप उसमें हाइड्रोजन लगा सकते हो जो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जो हो गए उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ आप हाइड्रोजन लगा देंगे। Now, what are alkynes? Alkynes are unsaturated hydrocarbons which contain carbon-carbon triple bond. They are called alkynes. Like ethyne जो है हमारे पास ईथ का लफ्ज़ 2 से निकला है, तो 2 कार्बन होंगे लेकिन उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसलिए YNE इथाइन हम लिखते हैं। प्रोपाइन जिसमें 3 कार्बन मौजूद हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको ओपन करके मैंने लिखा हुआ है। अगर आप देख लें 2 का फर्स्ट और सेकंड कार्बन में राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब तीन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए पहले वाले कार्बन के, तो अब एक रह गया तो वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, और इस कार्बन के 3 तो इस कार्बन के साथ है राइट साइड वाले के साथ, तो एक लेफ़्ट साइड वाले कार्बन के साथ कंज्यूम हुआ है। बाकी जो लास्ट कार्बन है उसका एक तो मिडल वाले कार्बन के साथ कंज्यूम हुए, जबकि बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम हुए। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से कुछ जनरल फार्मूलाज आपको प्रोवाइड किए हैं। लाइक जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 है, और जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन CnH2n है। इसी तरह जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस जो है CnH2n-2। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये अल्कीन्स और अल्काइंस का आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा भी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ कि अगर आप लोग को कोई कहे कि जो मीथेन है CH4 इज़ इट अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप उसको इस फार्मूला में पुट कर देंगे। कैसे? क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो N है वो नंबर ऑफ़ कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इसमें आपके पास मीथेन है और आपसे कोई पूछ रहा है तो आप इसमें 1 लगा दें कार्बन के नीचे N की जगह, और फिर H2n+2 है, सो 2 × 1 + 2 लगा दें, सो 2 × 1 2 हो जाएगा, +2 मिल के 4, सो CH4। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये मीथेन है। अगर ये इस फार्मूले में CH4 ना बनता, कुछ और बनता, तो आप उसको सेकंड फार्मूले में फिर अप्लाई करते, फिर थर्ड में अप्लाई करते, किसी में तो आपके पास निकल आता, तो आप कहते कि ये हमारे पास अल्केन या अल्कीन या अल्काइन है। इसी तरह ये आपको आगे वीडियो लिंक में भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर आप इथीन को देख ले C2H4 उसका फार्मूला होता है, और आप इसमें पुट कर ले CnH2n में, मैं तो फ़िलहाल उसी फार्मूले में पुट कर रही हूँ जो उसकी टाइप है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पे भी, जैसे इथीन को आप इथाइन वाले फार्मूले में पुट कर ले तो वही आपके पास नहीं आएगा, वही फार्मूला नहीं आएगा जो आपके पास है। तो आपने Cn में C2 लगा दिया और H में 2 × 2 लगा दिया, सो C2H4। ये भी ठीक है कि ये इथीन का फार्मूला ठीक है C2H4। फिर इथाइन का है C2H2, अगर आप इसको पुट कर ले सो Cn और H2 × 2 -2, सो 2 × 2 4 हो गया H के नीचे, और -2 तो 2 रह जाएगा, सो C2H2 आपके पास। तो C2H2 जो है वो इथाइन का फार्मूला ठीक है, C2H4 इथीन का ठीक है, और CH4 जो है वो मीथेन का ठीक है। Now look at this sketch of the classification.
ये आपको लर्न करना होगा, कभी कभी इसी पे जस्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि ड्रॉ द स्केच फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे समरी के फॉर्म में दिया हुआ है, हमारी समरी भी हो जाएगी। जैसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है लेफ़्ट साइड पे, तो फिर उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स में डिवाइड किया गया है। फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस को आगे क्लासीफाई किया गया है। फिर अगर हम राइट साइड पे आ जाए तो क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, जिसमें होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, आप लिख सकते हो इसमें फ्लैश करके। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पैरिडीन इन्होंने एग्जांपल ली है, हमने पिछला डिस्कस कर लिया है। फिर होमोसाइक्लिक को आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया। फिर एलिसाइक्लिक को फर्दर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ये मैंने रिटर्न वर्क में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ। जैसे मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन या साइक्लो ब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन की जो एग्जांपल बताई है, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, वो इस तरह भी हो सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन या साइक्लोपेंटीन या साइक्लोहेक्सीन। अगर हम डबल बॉन्ड उसमें ऐड कर लें तो इसका मतलब है कि रिसाइक्लिक को भी में भी आपके पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। अब सेचुरेटेड तो साइक्लो अल्केन है, जैसे साइक्लोप्रोपेन जो हमने डिस्कस किए हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। लेकिन अनसेचुरेटेड में साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन दोनों हो सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड भी उसमें ऐड कर सकते हैं हम, ट्रिपल भी ऐड कर सकते हैं, बेशक नंबर ऑफ़ एटम्स कम हो जाएंगे। ओके, नाउ अब बारी आती है होमवर्क की। सो द होमवर्क आई हैव गिवन टू यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह दिया हुआ है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द नेचुरल मैन मेड सोर्सेज है मेरा जहाँ तक ख्याल है। आप देख ले फिर एक्सरसाइज में, तो उसमें आपके पास ये वाइटल फोर्स थ्योरी आप डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी वाइटल फोर्स थ्योरी पे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने अभी डिस्कस किया टॉपिक के अंदर कि आपके पास जो है 3 पार्ट्स है, तो वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, 1 बाय 1 हर एक पार्ट को कर लें। आप यूनिक बुक से हेल्प भी ले सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह री ओपनिंग ऑफ द स्कूल पे हम सारे जो क्वेश्चंस हैं जिस जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, स्पेशली एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और चैप्टर के अंदर भी जो जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज उसको भी आपको कवर करना होगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपका 9th का जो रिज़ल्ट है वो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगा। मैट्रिक का जो होगा तो उसके मुताबिक आपका जो है 9th का भी बनेगा। सो उम्मीद है कि आप सारा काम रिटन फॉर्म में भी करेंगे और लर्निंग भी आपने अपनी स्टार्ट की हुई होगी। और री ओपनिंग ऑफ द स्कूल पे इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपका एक सबसे पहले मंथली टेस्ट होगा, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। प्रैक्टिकल का काम भी आपको मैंने ग्रुप में समझा दिया है, तो कोशिश करें, समझा क्या दिए कि मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है तो उसको प्रॉपरली कर लें, ताकि स्कूल ओपन हो तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ पहले चेक हो, उसके बाद इंशाल्लाह कोर्स कवर हो जाए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाएंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।